अस्सलाम वालेकुम। चंद बातें, ज़रूरी बातें जिन्हें हमने उलमाओं से सुनी है और किताबों में पढ़ी है, उन्हें मैं अपनी ज़बानी आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बचपन में जो आदत पड़ जाती है वो आखिर तक अक्सर कायम रहती है। तब्दीली आ सकती है मगर मुकम्मल नहीं। यही बात हमें तारीख़ से भी मालूम होती है। अब देखिए गवर्नरों की हालत क्या है। तमिलनाडु गवर्नर रवि साहब कैसे हैं, वो किस तरह पेश आते हैं, तमिलनाडु से उनका कितना वास्ता है, कितना लगाव है, वो मुखालिफत करने में कोई कमी नहीं रखते। ऐसा ही लगता है हम जैसे लोगों को। और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब थी, उनकी हालत भी क्या थी हम सब वाकिफ़ हैं। और हम ये भी जानते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान साहब में हमेशा एक कॉन्फ्रेंटेशन का जज्बा होता है। वो कांग्रेस में थे, वज़ीर भी थे। शाहबानो केस में उन्होंने क्या रुख इख्तियार किया, क्या बातें कही और क्यों इस्तीफ़ा देकर चले गए, इन तमाम बातों से भी हमें वाकिफ़ था। मैं ये नहीं कहना चाहता और कह भी नहीं सकता हूँ कि शाहबानो केस में उन्होंने जो बातें कही वो बिल्कुल गलत थी। ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है उनकी बातों में एक हद तक सच्चाई भी रही हो, मगर जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया वो गलत था। इसी को कॉन्फ्रेंटेशन कहते हैं। जमहूरियत में सबको संभल कर एक साथ चलने की ज़रूरत है। अब देखिए केरल के गवर्नर के बारे में एक मज़मून आया है, इसे मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि फ़िलहाल केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर किस तरह केरल में स्टेट गवर्नमेंट के साथ पेश आते हैं और उनका क्या रवैया है, ये भी देखिए। मैं राजेंद्र विश्वनाथ साहब के बारे में कुछ नहीं जानता, लिहाजा उनके बारे में कुछ टिप्पणी कर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो गलत होगा। मगर गवर्नर के आला ओहदे पर फाइज होने के बाद वो अपनी जिम्मेदारी बहुस्न खूबी निभा रहे हैं और सबको साथ लेकर चलने का जज्बा जो उनमें हम जैसे लोगों को देखने में मिलता है वो वाकई काबिल दाद है, काबिल तारीफ़ है, इसमें शक नहीं। अब आइए द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के बारे में क्या कहा गया है उस पर नज़र करते हैं। ये अंग्रेज़ी में है, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। गवर्नर इन टीम केरला बोर्ड्स वेल फॉर स्टेट। In an era where the politics of confrontation is a national norm, Kerala Governor Rajendra Vishwanath Arlekar has
given the tradition of hostilities, a welcome break by espousing the politics of principles. In a pleasant departure from the usual, the governor was present when the chief minister, Pinarayi Vijayan, met Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in Delhi on Wednesday to press Kerala's demands. The night before, the governor hosted a dinner for all members of parliament from the state, which was also attended by the CM and his government's special envoy in Delhi, K.V. Thomas. At the dinner, the governor reportedly underscored the importance of setting aside political differences and staying united on matters concerning the state. Arlekar also made it clear he is aware of the state's issues and is ready to meet the Prime Minister and central ministers along with the CM in Kerala's interest. Through his gesture, the governor has demonstrated that protocols do not matter when it comes to his state's concerns. He was not just breaking traditions but also setting an example. Arlekar's gesture seemed especially warm given the ongoing confrontations between the central government and opposition ruled states and between the state governments and central appointed governors. In Kerala, during Arlekar's predecessor Arif Muhammad Khan's term, the Raj Bhavan and the state government were engaged in an unending series of bitter exchanges. Arlekar indicated soon after assuming charge that though he was not looking for conflicts, he would strictly abide by rules and precedents and would act without prejudice. His actions go beyond his constitutional obligations but are certainly in line with the spirit of democracy. His attempts at bringing together leaders from across party lines help project the image that Kerala is united for the cause of its people. The governor taking the initiative to improve state-center relations and push Kerala's demands is heartening. It augurs well for the state. Now, it is up to the state government to ensure that the Bonhomie stays strong and mischief mongers within and outside the ruling front do not vitiate the atmosphere. There is no doubt that this governor is part of Team Kerala and his presence can give the government an edge in negotiations with the center. The politics of principles should hold public good above all other concerns. मैं समझता हूँ तमिलनाडु के गवर्नर को भी इनसे सीखने की ज़रूरत है। हम फिलहाल केरला के गवर्नर की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। वो स्टेट के लिए, केरला स्टेट के लिए जो ज़रूरत है वो करना चाहते हैं। उनके दिल में भलाई और बहबूदी लोगों के लिए
के लिए काम करने की नीयत है। अर्लेकर वाकई एक बेहतरीन गवर्नर हैं जिनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे ये सब मैं जानता नहीं हूँ। क्या वो आरएसएस के थे वो भी नहीं जानता हूँ, मगर वो जो काम सर अंजाम दे रहे हैं उसकी हम तारीफ़ करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं। खुदा करे कि हमारे मुल्क में ऐसे गवर्नर कायम हो जाए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जब अखबारों में फ़िलहाल केरला के गवर्नर अर्लेकर की तारीफ़ की बातें सुनते हैं तो आरिफ मोहम्मद खान साहब को शर्म आती होगी या वो कुछ सोचते होंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छी आदतें सिखाएं, सबको साथ लेकर चलने का जज्बा सिखाएं, कॉन्फ्रेंटेशन को कभी बच्चों में जन्म न दें। उन्हें अच्छी आदतें सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा हमने बड़ों से सुना है, उलमा कराम से सुना है कि जो आदत और तारीख़ में भी पढ़ा है, जो आदतें बचपन में पड़ जाती हैं वो आखिर तक अक्सर कायम रहती हैं। बड़ों की तारीख़ हमें यही बात बताती है। आप केरल के गवर्नर अर्लेकर साहब के बारे में क्या समझते हैं? ये आर्टिकल जो मैंने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आपको पढ़कर सुनाया है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है बताइएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।